وقت کے اس پار اس نے خواب میں دیکھا گھنٹی کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ ہڑبڑا کے لحاف پھینکتی ہے، پھر بستر سے پیر نیچے اتارتی ہے اور چپل پیروں میں ڈالے باہر کو لپکتی ہے. اب وہ تیز تیز سینے پھلانگ رہی ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے. وہ دروازہ کھول کے باہر ڈرائیو وے پہ آتی ہے. سامنے گیٹ کے پار کوئی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے. اس کے قدم سست پڑ جاتے ہیں. وہ گیٹ تک آتی ہے، جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھاتی ہے. آدمی اس کو ٹوکری پکڑاتا ہے. وہ وہیں نیچے زمین پہ بیٹھتی جاتی ہے. ٹوکری اس کے ہاتھ میں ہے اور چہرہ شکست خوردہ سا لگتا ہے. اب وہ ٹوکری میں موجود اشیاء پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. ان کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی ہے، تیز مانوس خوشبو، اور اس کی آنکھیں بھیگی جا رہی ہیں. ٹوکری میں رکھی چیزیں دھندلی نظر آ رہی ہیں اور خواب ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. سرد ہوا کے زوردار جھونکے نے اس کے سر سے چوگے کی ٹوپی گرا دی. تالیہ مراد چونک کے اٹھی. وہ سوئی نہیں تھی، بس کشتی کے کونے میں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں پہ چہرہ ٹکا کے آنکھیں موندی ہی تھی کہ یہ خواب دکھائی دیا. اب آنکھ کھلی تو دیکھا کشتی پانی پہ تیرتی آگے بڑھ رہی تھی اور جزیرہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا. کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ ایڈم ہاتھوں میں رسی لپیٹتے ہوئے قریب آیا تو اس نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا. چوگے میں ملبوس وہ رسی اٹھائے مصروف دکھائی دیتا تھا. اچھے برے کا معلوم نہیں، مگر ہاں خواب ہی دیکھا ہے. اس نے جھرجھری لی. کیا دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اس کے قریب آ رکا، ساتھ ساتھ رسی بھی لپیٹ رہا تھا. میں نے خود کو اپنے کیئر والے گھر میں دیکھا ہے. گھنٹی بجتی ہے، ایسی گھنٹی جس کا مجھے انتظار تھا. شاید کوئی عادت ہو جیسے. میں بھاگ کے دروازہ کھولتی ہوں تو مجھے کوئی شخص ایک ٹوکری دیتا ہے جیسے تحفہ ہو، مگر میں وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے خود بھی ہی الجھ گئی ہو. تحفہ ملنے پر یوں غمگین کون ہوتا ہے ایڈم؟ جو خزانے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور وقت کے اس پار کھو جاتا ہے. شاید وہ. اداسی سے مسکراتے ہوئے ایڈم نے رسی کا گچھا دور ایک سپاہی کی طرف اچھالا، جس نے فوراً سے اسے تھام لیا. دوسرے سپاہی اور خادم بھی لنگر انداز ہونے کی تیاریوں میں لگے تھے. مگر اس ٹوکری میں کیا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا. میں اس چیز کی خوشبو پہچانتی ہوں، ایسے جیسے رسیلا چاکلیٹ ہو. پھر اس نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوئی. خیر، ایک بات تو طے ہے کہ ہم اس زمانے کی قید سے جلد نکل جائیں گے. ہم یا صرف آپ؟ تالیہ نے گلا میز نظروں سے اسے دیکھا. تمہیں لگتا ہے میں تم دونوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو 20% خزانہ بھی مجھ سے بانٹنا برا لگ رہا ہوگا اندر ہی اندر. ہاں لگ تو رہا ہے، 20% جتنا کام تو تم نے کیا نہیں ہے. بالوں کو بے نیازی سے پیچھے جھٹکا اور عرشے پہ آگے کو آگے بڑھ گئی. جزیرہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، سورج اسی رفتار سے ڈھلنے کی تیاری میں تھا. ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری. چھ تالیاں جل بھی جائیں تو ان کے بل نہیں جائیں گے، یہ تو طے تھا. بندارا کے دربار میں کھڑا وون فاتح کہہ رہا تھا. وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی. اگر تم اس کو بچانا چاہتی ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا. مراد راجہ کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا. بس یہی یا کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو تم راجہ؟ بے تاثر سے انداز میں اس نے بات جاری رکھی. مراد کی گردن میں گلٹی سے ڈوب کے ابھرتی دکھائی دی، مگر چہرے کے تاثرات اس نے بہت ضبط سے ہموار رکھے. مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے. جاؤ اور میرے قید خانے میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارو. قدرے غصے اور حقارت سے ہاتھ جھلا کے بولا تو فاتح ہلکا سا مسکرایا. بہت جلد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے مراد راجہ کہ تم مجھے خود یہاں واپس بلاؤ گے اور اس کرسی، تخت کے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا، پہ بٹھا کے میرے ساتھ مذاکرات کرو گے. مراد نے جواب نہیں دیا. ہاتھ دوبارہ جھلایا اور رخ موڑ لیا. سپاہی تیزی سے وارد ہوئے اور اسے بازوؤں سے پکڑا. اس نے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر راجہ پہ ڈالی جو کمر پہ ہاتھ باندھے رخ موڑ گیا تھا اور پلٹ گیا تھا. عارف! اس کے جانے کے بعد مراد قدرے بے چینی سے عارف کی طرف گھوما جو فکر مند سا وہیں کھڑا تھا.
पेशानी शिकन आलूद थी और आंखों में परेशानी थी। क्या तुम्हें इस आदमी की बातों पे यकीन है? आरिफ ने एक नजर बंद दरवाजे पे डाली जहां से फातिह अभी गया था। इसकी पेशानी कुशादा और आंखें रोशन हैं। ऐसे चेहरे झूठों के नहीं होते। फिर तुम अभी उसी वक्त जुनूबी महल की तरफ रवाना हो जाओ और शहजादी को बाहिफाजत वापस ले आओ। अभी आरिफ। आखिर में इसकी मुस्तरिब आवाज बुलंद हुई तो आरिफ ने झट सर झुका दिया। जो हुक्म राजा, और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुराद अब मारे इज़्तिराब के दरबार में दाएं बाएं चक्कर काट रहा है। वो अंदर तक हिल के रह गया था। शाम ढल गई तो बंदाहारा महल के दरो दीवार ने सरगोशियों में एक दूसरे को तय खाने का अहवाल सुनाया। खिड़कियां एहतजाजन जरा खड़की और दरवाजे ने अपने पट चलाए, मगर ऊंचे सतून बेहिसी से कैद खाने का मंजरनामा सुनते रहे। वो जेल नीचे तय खाने में बनी थी। अंधेर काल कोठरियों की कतार जिनके दरवाजे आहनी और सलाखदार थे। ऐसी ही एक कोठरी के अंदर जमीन पे फातिह बैठा था। इसके हाथ खुले थे, मगर दाएं पैर से बंधी जंजीर के सिरे पर बड़ा सा लोहे का वजन बंधा था, जिसके बायस वो चंद कदम से ज्यादा नहीं चल सकता था। मगर इसने खड़े होने की कोशिश भी नहीं की। बस कोने में अकड़ूं बैठा दीवार को देखता रहा। दीवार पे लगे गारे और ईंटों की खराशों में वो नाखून से लकीरें खींच के हिसाब किताब कर रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? आर्याना दूसरे कोने में चुपके से आन बैठी थी। फातिह ने नजरें उसकी तरफ उठाई। वो सफेद हेयर बैंड में बाल जकड़े आलती पालती किए बैठी इसको गौर से देख रही थी। कितने घंटे बीत चुके ये हिसाब कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप के पास हमेशा प्लान होता है और मेरे हिसाब के मुताबिक वो ठीक जा रहा है। वो दोबारा नाखून से लकीर खींचने लगा। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे डरना नहीं, महज इंतजार करना है, वक्त के उस पार जाने का इंतजार। और इसके बाद वापस आके आप तालिया के साथ क्या करेंगे? वही जो मैंने उससे वादा किया है, मैं उसको आजाद कर दूंगा। वो अपनी जिंदगी गुजारे, खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसने हल्के से कंधे उचकाए और एक लकीर खींची। नाखून की सूखे गारे से रगड़े जाने की नाकाबिले बर्दाश्त आवाज सुनाई थी। और अगर किसी मौके पर आपको वापसी या तालिया मुराद में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करेंगे? वो चौंका। तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आया? बेहद हैरत से इसने कोने में बैठी आर्याना को देखा। जवाब में वो इस्तेहज़ाइया सा मुस्कुराई। मुझे? मगर मैं तो कोई नहीं हूँ डैड। मैं आपका सबकॉन्शियस माइंड हूँ जो आपसे पूछ रहा है कि अगर चुनाव का मौका आया तो क्या करेंगे आप? इसने जवाब नहीं दिया, बस गर्दन मोड़ के दीवार पे लगी लकीरों को देखने लगा। माथे पे बल पड़ गई और आंखों में बेचैनी दर आई। ज़हन में एकदम आवाजों का हजूम इकट्ठा हो गया था। एक वक्त आएगा जब आप मुझे कहेंगी कि आपको मेरी जरूरत है वॉन फातिह, कि मैं आपके साथ रहूं। तालिया हंसी थी। ये एक बेवफा आदमी है जिसको वादे निभाने नहीं आते। मलिका की आवाज में संजीदगी थी। मैं वॉन फातिह हूँ और मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं होती। वो एक जमाने में कभी ये बोला था। वॉन फातिह को सिर्फ वॉन फातिह से मोहब्बत है। असरा बेरहम हुई थी। आवाजें, यादें सब दीवार पे लगी लकीरों से टकरा रही थी। वो सर झटक के अपनी तवज्जो मंसूबे पे मरकूज करने लगा। 3 चांद वाले जजीरे पे सूरज डूब रहा था। जवान समंदर लहरें बार बार साहिल तक लाता और फिर वापस ले जाता। किश्ती साहिल पे लंगर अंदाज हो चुकी थी और सिपाहियों का गिरोह रेत पे उतरा खड़ा था। दायरे की सूरत में वो तालिया और एडम के गिर्द खड़े थे। मोरख खामोश था, जबकि चोगापोश शहजादी को हदायत दे रही थी। सब टोलियों की सूरत जजीरे में फैल जाओ, मगर साहिल की पट्टी के साथ साथ अंदर की तरफ जंगल शुरू हो जाता है। हमने रात में जंगल के अंदर नहीं जाना, सिर्फ साहिल की पट्टी के साथ जजीरे को चारों ही तरफ से लपेटना है। कोई भी गैर मामूली चीज नजर आए तो ऐसी सूरत में इसने एक तुर्किश सामने किया जो तीरों से भरा था। ये आतिशबाज तीर हैं और तुम सबके पास ये मौजूद हैं। इसको सुलगा के हवा में छोड़ोगे तो ये फिजा में फट जाएगा और रोशनी देख के बाकी सब तुम्हारी तरफ भागे आएंगे। जो हुक्म शहजादी। सिपाही सर हिला रहे थे। आप मेरे साथ रहिएगा। वह सब बिखर गए तो एडम ने मुहाफिजाना अंदाज में कहा, ओह इतने बड़े हो गए हो और अंधेरे से डरते हो। तालिया ने सादगी से पलकें झपकाई।
एडम की पेशानी पे बल पड़े। मैं आपके लिए कह रहा था। मेरे लिए? वो हंसी। मैं ताशा पसोना हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। फिर बालों को झटका, चोगे की टोपी बराबर की और एक तरफ को मोड़ी तो एडम बोला, अभी तक ना मैंने बंगाराया मलाइयों में आपको साहिरा का लक़ब दिया है, ना ही मलाका में कोई आपको इस नाम से पुकारता है। शायद वो वक्त अभी आना है जब मैं पसोना बनूंगी। तुम जलना छोड़ो और खजाने को तलाश करो। घुमंडी शहजादी इसको खातिर में ना लाते हुए एक तरफ को चल दी। एडम जब्त के घूंट भरता रह गया। सूरज डूब गया और जजीरे पे अंधेरा छा गया। ऐसे में पूरा चांद आसमान पे चमकने लगा। जजीरा बिल्कुल खामोश था। किसी फौज, किसी मखलूक की चाप तक ना सुनाई देती थी। क्या वाकई खजाना इसी जजीरे पे था या उनके सारे हिसाब किताब गलत थे? वो ठंडी रेत पे कदम ब कदम चल रही थी। चौकन्नी नजरें चारों तरफ लगी थी। जजीरा बिल्कुल खामोश और साकिन था, सिवाय साहिल की लहरों के शोर के कोई आवाज। और एकदम आवाज सुनाई दी, हुर्राती हुई आवाज। वो सन्नाटे में रह गई। बस साबित हुआ कि जजीरा जिंदा था, मलाका के उस कदीम जंगल की तरह जिसमें वो 4 दिन तक फंसे रहे थे। तालियां मोहतात अंदाज में आवाज की सिमत चलने लगी। आवाज किसी जानवर की मालूम होती थी, जैसे कोई मखलूक डकार रही हो। जूते में कोई सुराख हो गया था जो रेत पैरों में घुस रही थी। यूं लगता था वो ठंडी रेत पे नंगे पैर चल रही है। नन्ही नन्ही चीजें पैरों में चुभ रही थी, मगर वो चुभन से बेपरवाह कदम उठाती रही। चोगे की टोपी ने इसके सर को ढांप रखा था, मगर हवा के बाइस वो पुश्त से फड़फड़ा रहा था। दिफाकतन एक मकाम पे वो ठहरी। सामने आसमान पे मक्खन की टिकिया जैसा चांद चमक रहा था। इसने नजरें दाएं तरफ मोड़ी। वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी चोटी खूब रोशन थी, जैसे शीशे की बनी हो। इस चोटी के चमकते शीशे में एक दूसरा चांद नजर आ रहा था। वो एकदम घूमी। हवा से चोगे की टोपी पीछे को ढलक गई, मगर उसकी स्याह आंखें सामने जम गई। वहां स्याह कांच जैसे समंदर का पानी बह रहा था और एक चांद पानी की सतह पे चमक रहा था, जहां मिलते हैं 3 चांद। वो चौंक के बुड़बुड़ाई, फिर इसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। यहाँ? हाँ, यहाँ मिलते हैं 3 चांद। पहाड़ी की चोटी शीशे या कांच की बनी लगती थी। चांद आसमान पे चमक रहा था, मगर उसका अक्स समंदर के पानी और चोटी दोनों में दिखाई दे रहा था। 3 चांद। इसने गहरी सांस ली। तो ये थे 3 चांद। उन्हीं के आसपास आवाज आई थी, चैतालिया। एडम ने करीब में सरगोशी की तो वो चौंकी। वो पीछे से तेज तेज आ रहा था। तालिया के माथे पे बल पड़े। सुनो, तुम बॉडीमैन हो गए वॉन फाते के। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। एडम ने जवाब नहीं दिया। एकदम तुर्किश से तीर निकाला और तालिया की तरफ कुमान तान के तीर चला दिया। वो हक्का बक्का रह गई। तीर जन से उसके पास से हवा में तैरता पीछे को गया। तालिया घूमी। पहाड़ी के कदमों में एक आदमी खड़ा था और वो तालिया की तरफ तलवार ताने भागा आ रहा था। तीर उसके हाथ पे लगा तो तलवार छूट गई। वो कराह के नीचे गिरा। तालिया ने झट अपना तीर कुमान उस पे तान लिया। आप अपनी हिफाजत खुद करना जानती हैं शहजादी, है ना? तन से कहता एडम करीब आया। तालिया ने बस थूक निकला। नजरें उस आदमी पे जमाए रखी। उसकी तलवार दूर जा गिरी थी। तलवार उठाने के बजाय वो लुढ़खड़ाता हुआ उठा और पीछे हटने लगा। हाथ से भल भल खून बह रहा था। रुक जाओ, वरना अगला तीर तुम्हारे सर के आर पार होगा। वो तीर से उसका निशाना लिए गुर्राई तो आदमी ठहर गया। तालिया ने उसके आसपास नजर दौड़ाई। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? बोलो, कहाँ है मुराद राजा के दूसरे आदमी? वो खस्ता हाल हुलिये वाला जंगली सा आदमी लगता था। जवाब देने के बजाय दाईं तरफ देखने लगा। होंठ सिले रहे। मैं कुछ पूछ रही हूँ। मगर वो मुसलसल दाईं तरफ देख रहा था, जैसे किसी का मुंतजिर हो। कहीं उसके साथी हमला ही ना कर दें। हमें सिपाहियों की जरूरत है। एडम ने फिक्रमंदी से कहते हुए आतिश भरे तीर को सुलगाया और जोर से ऊपर फिजा में छोड़ा। तीर ऊपर जाके फट गया। हर सू आतिशबाजी की सूरत रोशनियां बिखर गई और फिर अंधेरा छा गया। मगर जरा सी रोशनी में तालिया को उस आदमी की दाएं तरफ कोई हरकत दिखाई दी थी, कोई रेंगती हुई शय जो उस तरफ बढ़ रही थी। तीर कुमान ताने तालिया की नजरें उस तरफ उठी। चांदनी में अब वाजिया दिखाई देने लगा था।
زمین پہ کوئی چیز رینگ رہی تھی، چھپکلی کی شکل کا مگرمچھ، لیکن عام مگرمچھ سے دگنا۔ کموڈو ڈریگن ہے یہ تو، تالیہ چونکی۔ تو راجا نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک کموڈو ڈریگن پال رکھا ہے اور اس کا خیال یہ شکار باز رکھتا ہے، یعنی اس آدمی کا کوئی ساتھی ادھر تعینات نہیں ہے، یہ ایک ڈریگن کافی ہے۔ ڈریگن زمین پہ رینگتا آہستہ آہستہ اس آدمی کے سامنے آ رکا، اس کا بھاری پیٹ نیچے رگڑتا ریت پر نشان لگاتا جا رہا تھا۔ سامنے آ کے اس نے منہ کھولا اور غرایا۔ ایڈم اور تالیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ ذرا فکر مند ہوئی۔ ڈریگن ایک ہی نوالے میں سالم بندہ نکلنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ آج کے ملیشیا کے ڈریگن سے دگنا تھا، تو یہ تو ایک ہی سانس میں ان دونوں کو ہضم کر جاتا۔ ایسا کرو تم اس آدمی پہ تیر چلاؤ اور میں ڈریگن کا نشانہ باندھتی ہوں، ان دونوں کو مار کے ہی ہم اس پہاڑی تک جا سکتے ہیں۔ یہ اگر اس پہاڑی کی حفاظت کر رہے ہیں تو خزانہ ادھر ہی ہے، مگر ہم کموڈو ڈریگن کو نہیں مارتے۔ ایڈم ایک دم بولا۔ اف ایڈم، اس نے دانت پیسے، یہ ہمیں کھا جائے گا۔ مگر ایڈم نے کمان نیچے کر دی۔ ہم سانپ کو بھی نہیں مارتے، ان کو ان کے علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے وائلڈ لائف پارک میں ایک بچی کی جان بچائی تھی کموڈو ڈریگن سے، لیکن میں نے اس کو نہیں مارا تھا۔ نہیں چیتالیہ، ہم جانوروں کو مارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے اندر کا اورنگ اصلی جاگ گیا تھا۔ تالیہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ تو تم کموڈو ڈریگن سے پہلے مقابلہ کر چکے ہو؟ اس نے اپنا تیر کمان نیچے کر لیا۔ میں ایک بچی کی جان اس سے بچا چکا ہوں، لیکن سرکاری اعزاز دیتے وقت مجھے بلا دیا گیا تھا۔ مگر تم تو اس واقعے کو نہیں بھولے نا؟ ہو سکتا ہے اس دنیا کے واقعات اس دنیا کی تیاری کے لیے ہوں۔ جاؤ اور ہمیں اس ڈریگن سے نجات دلا کے دو۔ شہزادی نے کمان بلند کر کے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں ڈریگن تھا۔ شہزادی کے حکم پہ ایڈم نے بے اختیار تھوک نکلا۔ چند فٹ کے فاصلے پہ ڈریگن کھڑا غرا رہا تھا اور شکار باز اس کی اوٹ میں کھڑا اپنے زخم کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا۔ خون دھاروں کی صورت بہ رہا تھا، مگر اس کی بے تاثر آنکھیں ایڈم پہ جمی تھیں۔ عجیب پتریلا چہرہ تھا اس کا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایڈم بھاری آواز میں استفسار کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سپاہی وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تالیہ نے ان کو خاموشی سے اپنے عقب میں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے کمان تانے وہیں جگہ سنبھال لی۔ احمد، کمال، علی، ایسا ہی کوئی نام ہوگا نا تمہارا؟ ایڈم تبصرہ کرنے والے انداز میں ڈریگن کی سیدھ میں کئی فٹ کے فاصلے پہ ٹھہر گیا۔ سنجیدہ نظریں اس شکار باز پہ جمی تھیں۔ مفید، وہ ہلکا سا بولا۔ مفید نام ہے میرا، اور تم نے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرا دوست تمہیں نکل جائے گا۔ یعنی تم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے مفید، وہ اونچی آواز میں بولا۔ یہ جانور تمہارا پالتو ہے، تمہارے اشارے کی تعمیل کرنا جانتا ہے، یہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ سب کچھ کرنا تو تم بھی جانتے ہو، لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ چاندنی میں ڈوبا خاموش جزیرہ اور اس پہ ایڈم کی آواز، سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ تالیہ البتہ بے چینی سے بار بار ڈریگن کو دیکھتی تھی۔ کمان تانے وہ ڈوری پیچھے کو کھینچے ہوئے تھی، ادھر انگلی چھوڑی، ادھر تیر ڈریگن کی آنکھ میں جا لگے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ تم بتاؤ، تم اس بیابان جزیرے پہ ایک جانور کے ساتھ راجا کے خزانے کی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ تم کچھ نہیں جانتے، زخمی شکار باز غصے سے بولا۔ یہ چند مشکل دن ہم نے گزارنے ہیں، پھر ہمارے پاس اتنا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا کہ ہم ساری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اس کے لمبے بال کندھوں پہ گر رہے تھے، میلا کچیلا چہرہ، الجھی داڑھی، لہو ٹپکاتی آنکھیں۔ وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں لگتا تھا۔ تو یہ وعدہ کیا ہے راجا نے تم سے؟ مراد راجا ہمارا سردار ہے اور یہ خزانہ یہ صرف ہمارا ہے۔ میرے پیارے دوست، دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑے ایڈم نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم غالباً مراد راجا کے تخت سنبھالنے کے دن سے یہی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ملاقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ بے وقوف انسان، مراد راجا اس وقت ملاقہ کا بے تاج سلطان بن چکا ہے۔ نہیں، ابھی سلطان مرسل زندہ ہے۔ شکار باز فوراً سے غرایا۔ جب وہ مرے گا تو ہم حکومت کریں گے۔ تم کتنے بے وقوف ہو مفید، تم یہاں مراد راجا کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہو اس آس میں کہ مراد سلطان کو قتل کر کے
तख्त संभाल लेगा? नादान इंसान, वो सुल्तान को कभी कत्ल नहीं करेगा। पूछो क्यों? वो सुल्तान को कत्ल कर देगा, वो हर धर्मी से चिल्लाया। खून बहाते हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी शहजादी ताशा की शादी मुर्सल शाह से कर रहा है। क्या अपने दामाद को कत्ल करेगा वो? तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुराद राजा की कोई बेटी ताशा नहीं है। मैं हूँ मुराद राजा की बड़ी बेटी, और अल्लाह शाहिद है कि मैं सच कह रही हूँ। तीर से इसका निशाना बांधे वो बुलंद आवाज में बोली तो मुफीद बेख्तियार इसको देखने लगा। शायद तुम्हें मेरे पापा ने अपने बारे में हर बात नहीं बताई। मैं शहजादी ताशा बिन्ते मुराद हूँ, और मुझे मेरे पापा ने ये खजाना लेने और तुम्हें मारने भेजा है। लेकिन मेरा ये जर्नैल चाहता है कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। एडम ने गर्दन मोड़ के उसे घूरा। अपनी कहानियां घड़ने वाली आदतों से आप पास न आइएगा। अब बताओ, मरना चाहते हो या कैद होना चाहते हो? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे बात करने दी। एडम हल्के से बोला, फिर मुफीद की तरफ चेहरा मोड़ा। मुफीद, तुम राजा मुराद के वफादार हो, मगर अपने दिल से पूछो, राजा तुम्हें भूल चुका है। वो वहां ऐश से हुक्मरानी कर रहा है और तुम इधर तन्हा हो। तुम्हारा दिल अब राजा से मोहब्बत नहीं करता। मुफीद लब भींचे उसे देखे क्या। जानते हो तुम्हारा दिल किससे मोहब्बत करता है? उंगली उठाकर इशारा किया। इस जानदार से जिसके साथ तुम्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। जब ऐसे कोई किसी को किसी के साथ जंगल में छोड़ दे तो पीछे सारी दुनिया अजनबी हो जाती है। सिर्फ वो अंधेरों का दोस्त रह जाता है। ये तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी है। तुम्हें उसी से मोहब्बत है, और जिनसे मोहब्बत की जाती है इनको अपनी ख्वाहिशात की रस्सी से कैद नहीं किया जाता। उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है। उन्हें अपनी जिंदगी खुल के जीने दी जाती है और दुनिया के जंगलों में अपनी मर्जी से भटकने दिया जाता है। अगर वो लौट के आ जाएं तो हम मोहब्बत में सच्चे थे, और अगर ना आए तो हम सिर्फ बदकिस्मत थे। अब वक्त आ गया है कि तुम इस मासूम जानवर को आजाद कर दो। मगर मुफीद नफी में सर हिलाता इन सब के चेहरे देख रहा था, मगर उसने जैसे थक के खून बहाता हाथ पहलू में गिरा दिया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुराद राजा वहां ऐश कर रहा है और तुम यहाँ पागल हो रहे हो। कब तक इस जानवर को अपने साथ कैद में रखोगे? कम से कम इसको आजाद कर दो। इसको कहो कि वापस जंगल में चला जाए और तुम हमारे साथ मलाका चलो। फिर अपनी आंखों से देखो कि मुराद राजा ने तुम्हें किस किस तरह धोखा दिया है, और अगर तुमने ये ना किया तो हम सब तीर मार मार के इस ड्रैगन की आंखें और शरियान फोड़ देंगे। मुफीद ने एक नजर इस ड्रैगन को देखा जो पंजों के बल खड़ा उन लोगों पे मुसलसल गुर्रा रहा था। फिर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इसने सीटी सी बजाई, अनजान जबान में चंद आवाजें निकाली। ड्रैगन ने उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। मुफीद ने हाथ से इशारा किया। सिपाहियों के तीर कमान अभी तक हाथों में थे। खुद तालिया का दिल जोर से धक धक कर रहा था। तीर तैयार था। इधर ड्रैगन हमला करता, इधर वो इसके अंदर तीर उतार देती। मगर ड्रैगन ने चंद लम्हे के लिए मुफीद की बात सुनी, फिर वापस मुड़ा और दरख्तों की तरफ जाने लगा। एडम ने गहरा सांस लिया। तालिया की भी तीर कमान पे गिरफ्त ढीली हुई। तुमने अच्छा फैसला किया मुफीद, अब हमें रास्ता दिखाओ। खजाना कहाँ है? और तुम यकीन रखो, वापस जाके मैं राजा से कहना मुझे माफ कर दे, मैं खजाने की हिफाजत नहीं कर सका। मुफीद ने आंसुओं भरी आंखों से कहते हुए अपने हाथ में लगा तीर एकदम खींच निकाला, और फिर अगले ही लम्हे इसे अपने सीने में पेवस्त कर दिया। जोर से उसकी चीख निकली और वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। लम्हे भर को वो सब शुद्धुत रह गए। फिर एडम बेख्तियार उस तरफ भागा, और सिर्फ एडम नहीं था जो उसकी तरफ भागा था। जंगल की तरफ जाता कमोडो ड्रैगन अपने मालिक की चीख सुन के तेजी से वापस लपका था। अगले ही लम्हे सिपाहियों के तीर फिजा में बुलंद हुए और ड्रैगन के जिस्म में पेवस्त हो गए। तालिया का तीर उसकी आंख में लगा। ड्रैगन घायल होकर जमीन पे लौटने लगा। उसके हलक से चीखें निकली थी। इसे मत मारो, एडम मिन्नत भरे अंदाज में चिल्लाया। खुदारा उसे मत मारो। तालिया ने चोगे की डोरी गर्दन तले से खींची। चोगा कंधों से ढलक के जमीन पे जा गिरा। फिर उसने तीर कमान परे फेंका और तलवार म्यान से निकाली।
जानवर उल्टा जमीन पे गिरा तड़प रहा था। तीर जहर में भुजे थे और असर दिखा रहे थे। तालिया तलवार लिए तेजी से उसके सर पे आई। छे तालिया, इसको मत मारे, ये एक मासूम जानवर है। एडम चिल्लाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मगर तालिया ने जोर से तलवार उसकी गर्दन पे दे मारी। ड्रैगन के सर के हिस्से में बड़ा सा कट पड़ गया। उसकी तड़प दम तोड़ गई, आंखों से जिंदगी की रोशनी निकल गई। एडम साकत खड़ा रह गया। तालिया उसी तरह आगे बढ़ी और जमीन पे गिरे मुफीद को गर्दन से दबोच के उठाया, फिर उसके सीने से जोर से तीर बाहर खींच निकाला। खून भल भल गिरने लगा। जंगल में रहते हो, इतने से जख्म से मर नहीं जाओगे। इसका चेहरा अपने सामने किए वो गुर्राई। वो मुसलसल कराह रहा था। नाटक बंद करो, राजा की चोरी के माल की हिफाजत है तुम्हें ये दिन दिखाया है। अब सीधी तरह मुझे खजाने का रास्ता दिखाओ ताकि तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना खुदा की कसम तुम्हारे जिस्म में इतने घाव लगाऊंगी कि घंटों तकलीफ से तड़पते रहोगे। उसकी गर्दन को झटका दिया तो तकलीफ से बेहाल शिकारबाज फौरन एक तरफ इशारा करने लगा। इधर गार में है खजाना। सिपाही फौरन मिशलें उठाए उस तरफ लपके। तालिया उसकी गर्दन दबोचे आगे बढ़ने लगी, फिर रुक के मुड़ी और एडम को संजीदगी से देखा। सारे भावताव जंग से पहले के होते हैं, लेकिन जब एक दफा लड़ाई शुरू हो जाए तो दुश्मन पे तरस खाना कमजोरी है एडम, और ये असूल सारे जमानों के लिए है। और उसे लिए आगे बढ़ गई। एडम बस शल सा खड़ा रह गया था। सिपाही अब गार की तरफ बढ़ रहे थे और सर कटा कमोडो ड्रैगन खून के तालाब में बेहिस्सो हरकत पड़ा था। सल्तनते महल की मखरूती छतों पे इस रात बारिश बरस रही थी। अपनी खाबका से मुल्हिका बालकनी में सुल्तान मुर्सल शाह खड़ा था, कमर पे हाथ बांधे, शाही कुबा में मलबूस। वो नीचे दूर तक फैले अंधेर सब्जाजार को दिख रहा था। पानी छत के किनारों से फिसलता बालकनी के सतूनों पर लुढ़क रहा था। मौसम खासा खुशगवार था। आका, मलिका की आमद की मनादी के चंद सानिये बाद यूसुफू उसके उकब में आ खड़ी हुई तो मुर्सल चौंका, फिर उसकी तरफ घूमा। मलिका, तबीयत कैसी है आपकी? मुझे खबर मिली थी कि आज कदरे बीमार थी आप। मेरे पापा की जान आपने बचा ली, उनकी नजरे बद का इलाज हो गया। उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे आका? उसने मुस्कुरा के ताज़ीम पेश की, फिर सीधी हुई और उन्हीं मुस्कुराती आंखों से सुल्तान को देखा। आपको मुझसे बात करनी थी। वो दोनों बालकनी में आमने सामने खड़े थे। इर्द गिर्द बारिश बरस रही थी, मगर वो महफूज थे। जी हाँ, हुक्म कीजिए आका। वो उसकी आंखों पे मुस्कुराती नजरें जमाए हुई थी। अब तक आपको इत्ला तो मिल गई होगी कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। तैयारी शुरू हो चुकी है और इंतजामात किए जा रहे हैं। यूसुफू के चेहरे पे एकदम ढेरों उदासी बिखर गई। इसने सर झुका दिया। जी आका, सुना तो था मैंने, मगर यकीन नहीं आया था। आप खफा होंगी यकीनन। मुर्सल शाह एहतियात मगर पुरसकून सा पूछ रहा था। ये तो शहजादियों की किस्मत होती है आका। मलिका ने थकी थकी से पलकें उठाई। मेरे पापा के हरम में 3 बीवियां और कई खवातीन थीं। मैंने अपनी वालिदा की तकलीफ देखी है। ये नहीं कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, दिल दुखता है, लेकिन वो जख्मी सा मुस्कुराए। अगर आका की खुशी इसी में है तो मैं इतराज नहीं करूंगी। मैं उस तकरीब में शामिल भी होंगी और खुले दिल से आपकी नई मनकूहा को खुशामदीद कहूंगी। मुर्सल शाह का चेहरा खिल उठा। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मलिका। जो होना है वो होना है, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि आप मलाका सल्तनत की मलका हैं और रहेंगी। सारे सलातीन दूसरी शादी से पहले यही कहते हैं आका। वो बुझे दिल से मुस्कुराई, फिर सर झटका। खैर, क्या किसी खातून का इंतखाब किया है आपने, या ये काम भी मुझे करना होगा? शाही दस्तूर के मुताबिक बाज दफा मलिका खुद सुल्तान की नई मनकूहा या खातून चुनती थी। क्या आपको नहीं मालूम? सुल्तान हैरान हुआ। मैंने शहजादी ताशा का इंतखाब किया है, मगर आपको कैसे मालूम होगा? ये नाम मेरे और मुराद राजा के दरमियान ही था अब तक।
शहजादी ताशा? मलिका की आंखें हैरत से फैल गईं। बालकनी के बाहर जोर की बिजली कड़क गई। पल भर को सारा महल रोशन हो गया। जगह जगह जमीन पे पानी खड़ा नजर आता था। अगले ही पल अंधेरा छा गया। जी, मुराद राजा की दुख्तर। मगर? मलिका बेख्तियार उलझन से बोली। शाही दस्तूर के मुताबिक आपके निकाह में आने वाली खातून का चंद शराइत पे उतरना जरूरी है आका। तो शहजादी ताशा किसी लिहाज से कम नहीं है। वो हमारे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनकी रगों में हमारा ही खून है। फिर वो खूबसूरत हैं और शाही अदाब जानती हैं। मुर्सल शाह ने सीना कड़ाते हुए फख्र से कहा था। मलिका चंद लम्हे सादगी से उसका चेहरा देखती रही। तो फिर तलाक दिलवाएंगे या उसके शोहर की गर्दन मारी जाएगी? बादलों के गरजने की जोरदार आवाज सुनाई थी। ऐसी दहशत, ऐसी गरज कि महल के हर जी नफ्स की रूह तक कांप गई। मुर्सल शाह भनचोका खड़ा रह गया। क्या कह रही हैं आप मलिका? उसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। दिमाग दुरुस्त है आपका? मेरा दिमाग तो दुरुस्त है आका, लेकिन आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं। शहजादी ताशा ने खुद मुझे राज में लेते हुए बताया था कि चीन के साथ जो आदमी उसके साथ आया है वो उससे शादी कर चुकी है। क्या आपको मुराद राजा ने नहीं बताया? हैरत है, वो अपनी शादीशुदा बेटी को कंवारी लड़की के तौर पर कैसे पेश कर सकता है? ये तो संगीन जुर्म है, गुनाह कबीरा है। वह खुद हैरान थी। आपको? मुर्सल की आवाज बुलंद और आंखें सुर्ख हुई। गलत फहमी हुई होगी। शहजादी ताशा गैर शादीशुदा हैं। इसका तनफ्फुस तेज हो गया था। आप खुद शहजादी से अल्लाह ताला की पाक किताब पे हाथ रखवा के पूछ लें। अगर उसने उस शादी से इनकार किया तो मेरी गर्दन मार दीजिए। मगर आका, वो लड़की शादीशुदा है और उसके शोहर को मुराद राजा ने अपने महल में पनाह दे रखी है। आपको जिससे शादी करनी है कीजिए आका, लेकिन बुजुर्गों के रस्म और रिवाज को ठोकर मार के नहीं। ये आपकी खानदानी गैरत और हमीयत का सवाल है। वो उसकी आंखों से नजरें हटाए बगैर कह रही थी। मुर्सल के चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। ये झूठ है, मैं नहीं मानता। वो एकदम मलिका के साथ से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। मलिका यूसुफ ने आराम से इसे जाते हुए देखा और जेरे लब बुड़बुड़ाई। फिर अफसोस से सर झटका। बालकनी की मखरूती छत के किनारे टपके जा रहे थे। बारिश में तेजी आ गई थी।